If the video is on, all of you. Acha, check the homework sums. चलो अभी every day you will have this reunion, don't worry. Question 6, homework sum, check. मैंने बोला था दोनों बुक लाने के लिए. Question 6, please check. Question 6 का silence now, eh? Question 6 का last balance of asset account would be 3,12,500. बराबर है? 3,12,500. See, first year, question 6. Question 6, first year, closing silence. Question 6 का first year का closing balance is 2,75,000. Second year का closing balance is 85,000. Third year का closing balance is 3,12,500. Then question 21. Question 21, first year opening balance is 9,250. Second year, first year closing balance it is 9,250. Second year closing balance it is 27,862. Right? 27. रोचा मारा है. Give me a book. करता हूँ रुक. Question. Damn. Question 21. First year closing balance is 9,250. मिला. Second year closing balance is 27,750. मिला. Third year final closing balance is 39,000. फिर sum number 11. 11 में first year closing balance is 82,500. You first be quiet. Last benches. Want to go out now. First year closing balance of 11 sum it is 82,500. Second year closing balance 74,250. And third and final year closing balance is 44,955. Yes, sir. 6, 11, 21 और एक था ना 7. First year का closing balance 2,18,000. Second year closing balance 196,200. And final third year closing balance 176,580. Yes, sir. 176,580. ठीक है? Sir, 21st वालों brokerage ब्रोकरेज है ना सेलिंग के वक्त हो रहा है ना तो सबट्रैक्ट फ्रॉम द सेल वैल्यू. सीधा सेल वैल्यू में से माइनस कर देंगे. मिला ऑल द 3 सम्स. जस्ट टेक द पिक ऑफ सॉल्यूशन एंड पुट इट इन द ग्रुप. मेरे को दे दो मैं डाल देता हूँ नीचे. हाँ सुनो अभी. रिमोट है क्या उधर एसी का? हाँ ये एक और रहेगा. आ रहा है हवा?
हाँ, where are you? It's 9987841608. That is the ID, my mobile number, and password is 55555. 5 times 5. Okay, so we have completed 3 big chapters of this semester. That will take for revision. Quiet now. We have completed 3 big chapters, okay, of this semester, that is BRS, rectification and depreciation. Left with one very big chapter, that is final accounts, which I'm going to start today. And there is a small chapter left out, that is single entry system. Again, single entry system, most of the colleges they will omit, because last year we omit kiya tha, but mainly for CA purpose. Okay, concept है उसका CA के लिए, वो important है कि जनरल 12th 11th में आपको कुछ प्रॉब्लम करने वाला नहीं है. तो मोटा मोटी देखा जाए तो ये साल का सबसे क्रूशियल चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, दैट इज फाइनल अकाउंट, ओके, व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. अभी probably I wanted to start offline today only, actually complete offline, but again few parents, few students had problems, so थोड़ा डिले किया है, and mostly by this week, okay, by Thursday Friday तक complete offline will start. Okay, घर वालों को क्लियर है? विजिबल, बोर्ड इज विजिबल, मैं दिख रहा हूँ बराबर से, आवाज आ रही है? ऑल क्लियर घर वाले? कीप द वीडियोज ऑन. नहीं करने. ओके, नाउ फाइनल अकाउंट्स. ओके, फाइनल अकाउंट्स. सी why it is so damn important chapter, because first reason, in your 12th standard ना तुम्हारा out of 80 marks syllabus, almost 50 marks का syllabus is based directly or indirectly on final accounts. 12th में आपका 80 marks का पेपर होगा ना, उसमें से 50 mark का portion is directly or indirectly based on final account. Directly मतलब there are 2 topics which are actually only final accounts. One 12 marks का 24 marks का 2 final accounts ही पढ़ना है आपको. एक पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट है और एक नॉन प्रॉफिट कंसर्न का फाइनल अकाउंट है. 24 मार्क तो डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स का ही, और बाकी 26 मार्क आपको 3 और चैप्टर्स के फॉर्म में आता है. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो भी फाइनल अकाउंट से कंसेप्ट पर ही बेस्ड है. अब ये अच्छे से आ गया तो वो आपको इजी लगेगा काफी. पूरा 60-70% चीजें सब सेम होने वाली है वहां पे. तो पहले तो 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा आगे जाके हायर स्टैंडर्ड्स में, वेदर यू डू MBA फाइनेंस, वेदर यू डू CFA, CA, वेदर यू डू एनीथिंग इन फाइनेंस, ICWA करो आप, CS करो, तो आपको फाइनल अकाउंट से ही डील करना है. फुल लाइफ यू विल बी डीलिंग विद फाइनल अकाउंट, द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी. हम लोग रिजल्ट्स बोलते हैं, दे आर नथिंग बट फाइनल अकाउंट. तो उसी के साथ डील करना है. तो ये कंसेप्ट जितना अच्छे से हो सके समझ लो. ओके, विल बी गोइंग स्लो, आराम से डिटेल में करेंगे. ओके, और जो भी नहीं समझ में आए, डाउट्स वगैरह हो, सॉर्ट इट आउट देन एंड देयर इटसेल्फ. ठीक है, आई विल बी गोइंग फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा मैं, स्लोली स्टेडीली विल गो. ठीक है, दैट बेसिक कंसेप्ट एक बार दिमाग में आ जाएगा, फिर तो उस पर बिल्टअप कर सकते हैं हम लोग धीरे धीरे धीरे. ओके, सो लेट्स फोकस ऑन द बेसिक फर्स्ट. ओके, लेट्स see what are basically final accounts. They are the final results of any business. They are the final results. एक साल पूरा काम किया आपने, उसके अंत में क्या नतीजा, क्या, that is what is the final account part, result part of the business. Okay, जैसे आपका रिजल्ट आता है एक साल मेहनत पढ़ाई करने के बाद, ओके, वहाँ पेपर्स देने के बाद जो मार्क्स आते हैं, वैसे बिजनेस का रिजल्ट्स को भी कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स. दैट्स व्हाट वी मेक एट द एंड ऑफ द ईयर. So as the name suggests, final accounts, so yeah, they are generally made at the end of the year. कब बनाए जाते हैं? At the end of the year, last day of the year. Okay, suppose the year is April to March, तो 31st March को बनाए जाएंगे. Year is Jan to December, तो ये 31st December को बनाए जाएंगे.
तो क्या कंपल्सरीली बिजनेस का साल अप्रैल टू मार्च ही होना चाहिए, ऐसा है नहीं। जैन टू दिसंबर लो, जुलाई टू जून लो, आपकी मर्जी, कोई भी ईयर एंडिंग आप चूज कर सकते हो। टैक्स डिपार्टमेंट चूजेस द ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, इसलिए ज्यादातर बिजनेस भी अपने ईयर को अप्रैल टू मार्च चलाते हैं। मार्च एंडिंग आपने सुना होगा। तो मार्च एंडिंग मतलब फाइनल अकाउंट बनाना है, रिजल्ट ढूंढना है, प्रॉफिट्स ढूंढना है, उसके ऊपर टैक्स भरना है आपको। तो आपको पता चलेगा कितने प्रॉफिट्स और कितना टैक्स लायबिलिटी है आपकी। तो बिजनेस का रिजल्ट पता चल जाता है, बिजनेस ने अच्छा किया है बुरा किया है वो पता चल जाता है, टैक्स कितना भरना है वो पता चल जाता है। ओके, बिजनेस की वैल्यू पता चल जाती है, मतलब वैल्यू मतलब द बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये भी आपको सब फाइनल अकाउंट से पता चल जाएंगे। इन सब चीजों में हम लोग डिटेल में देखेंगे अभी। सो होता क्या है, प्रोसेस कैसे होता है फाइनल अकाउंट्स का। लेट्स स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस एंड विल गो स्टेप बाय स्टेप एंड देन एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर देयर। लेट्स स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। लेट अस से हमने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। जो हम लोग पहली चीज क्या करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, सबसे पहली कैपिटल मतलब जर्नल, शुरुआत होती है जर्नल से, प्राइम बुक ऑफ एंट्री, राइट। सो ये जर्नल है उस बिजनेस की, और ये जो मैं एंट्रीज बता रहा हूं आप ऐसे समझो कि पूरे साल की समराइज्ड एंट्री, पूरे साल में इतने ट्रांजैक्शन हुए हैं, बहुत क्रूड वे से छोटे बिजनेस की बेसिक एंट्रीज हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उस पर बिल्टअप करेंगे, वही चीजें आगे बड़ी होती जाएंगी और कुछ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट यही है। तो समझो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसने 1 लाख का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल, कैश टू कैपिटल, ठीक है। सो कैश टू कैपिटल कितने का इंट्रोड्यूस किया है, 1 लाख रुपीज का, ठीक है। अब बिजनेस को थोड़े और पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उसने लोन उठाया, बैंक से लोन उठाया, लेटर से 40,000 रुपीज का लोन उठाया। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर टेकिंग अ लोन, कैश टू बैंक लोन या बैंक टू बैंक लोन, आप बैंक में ले लो या कैश में ले लो, एक ही बात है। मैं इधर थोड़ा वेराइटी के लिए बैंक लिख देता हूँ, बैंक टू बैंक लोन, बिजनेस का बैंक अकाउंट भी है। तो बैंक टू बैंक लोन, बैंक टू बैंक लोन 40,000 का आपने क्या लिया है, लोन उठाया है, ठीक है। फिर आपने ये पैसे लाए बिजनेस में, एसेट आ गए, लायबिलिटी आ गई। अभी वही अपना मोबाइल वगैरह का ट्रेडिंग बिजनेस, लेट अस अज्यूम, जो हम लोग बेसिक से लेते आ रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, या फिर कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस ले लो, कि पूरे साल हमने ट्रेडिंग बिजनेस का सीखा हुआ है सब अकाउंट्स। तो आपने फर्नीचर खरीद लिया, लेट अस से 20,000 का फर्नीचर खरीदा। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश, दैट इज 20,000 रुपीज, बराबर है। अच्छा, फर्नीचर खरीदा, उसके बाद ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करते हैं, धंधा चालू कर लेते हैं। ओके, तो धंधे में आपका काम क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फोन्स, राइट। सो बाइंग आपने पूरे साल में, लेटर से आपने 50,000 रुपए की बाइंग की है, कितने की, 50,000 की आपने परचेजेस किए हैं पूरे साल के। लेट अस अज्यूम दे आर ऑन कैश बेसिस। व्हाट इज द एंट्री फॉर बाइंग गुड्स ऑन कैश बेसिस, इट इज परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू कैश, लेटर से 50,000, ये एक महीने का नहीं है, पूरे साल का परचेज है। फुल ईयर में हमने 50,000 के फोन्स परचेज कर लिए, ठीक है। अब इसको बेचना भी है, सो दैट वी मेक सम प्रॉफिट्स। तो 50,000 के फोन लेटर्स अज्यूम हमने 90,000 में बेच दिए, प्रॉफिट्स लगा के, ठीक है। अच्छे प्रॉफिट्स कमाएंगे हम लोग, ठीक है, अच्छे फोन्स बेचेंगे, अच्छे प्रॉफिट्स कमाएंगे। सो लेटर्स अज्यूम हमने 90,000 में ये फोन्स सेल कर दिया, फुल ईयर का सेल्स, एंड दे आर ऑन कैश बेसिस। देखो डेटर को भी बेचोगे तो भी कैश तो आना ही है, डेटर टू सेल होगा, कैश टू डेटर होगा, नेट एंट्री तो वही बनने वाली है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमने समझो कैश में सेल कर दिया फुल सबके सब फोन्स। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर सेलिंग द फोन्स ऑन कैश, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स, कितने हो गए इसमें, 90,000 में हमने सेल कर दिया ये। अच्छा, अब थोड़े बहुत खर्चे देख लेते हैं। लेटर्स अज्यूम हमने ये जो परचेज किया था फोन्स, उसको लाने में थोड़ा कैरेज एक्सपेंस हो गया, क्या हो गया, कैरेज, ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा हो गया। लेटर से वो ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा हो गया 5,000 रुपीज। व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग कैरेज, कैरेज टू कैश, कैरेज टू कैश, कितने का खर्चा हो गया अपना, 5,000, 5,000 का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हो गया, कैरेज एक्सपेंस हो गया। उसके बाद लेट अस अज्यूम दैट
जो हम लोग फोन्स लेके आए थे, ओके, तो ये साल है ना, हम लोग जो मेजोरिटी अकाउंट्स देखा है हमने, हम लोग ट्रेडर्स थे। लेकिन बीच बीच में आपने देखा होगा कभी कभी वेजेस दिखते हैं आपको, या फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस दिखते हैं। तो सीन क्या है, सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग प्योर ट्रेडर्स नहीं, वी आर समवॉट सेमी मैन्युफैक्चरर्स, या समवॉट सेमी मैन्युफैक्चरर, नॉट प्रॉपर मैन्युफैक्चरर। प्रॉपर मैन्युफैक्चरर क्या खरीदता है, कच्चा माल खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको फिनिश गुड्स बनाता है और बेच देता है। पेपर पल्प खरीदा, पेपर बना के बेच दिया, या फिर बॉक्साइट खरीदा, कन्वर्ट किया एल्यूमिनियम में और बेच दिया, बराबर है, वो प्रॉपर मैन्युफैक्चरर होता है। हम लोग कौन है, सेमी मैन्युफैक्चर, मतलब हम लोग माल ट्रेडर्स ही है मेजोरिटी, उसमें थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग वोसेसिंग करके आगे बेच देते हैं। से फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल्स है, मोबाइल्स खरीदे, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, कुछ उसमें डिजाइन वगैरह बनाए, पैड वगैरह की पैड चेंज किए, कुछ डिजाइन बनाए और आगे सेल कर दिया, कस्टमाइज वगैरह करके सेल कर दिया। तो थोड़ी बहुत प्रोसेस करके हम लोग सेल करते हैं। तो ये प्रोसेसिंग के लिए शायद आपको फैक्ट्री की जरूरत पड़े, ये प्रोसेसिंग के लिए शायद आपको फैक्ट्री की जरूरत पड़ जाए। तो फैक्ट्री होगी तो वर्कर्स होंगे, फैक्ट्री के खर्चे होंगे। यहाँ पे ज्यादातर नहीं ले रहे, छोटा सा एक वेजिस का खर्चा ले लेते हैं। लेटेस्ट से वर्कर्स को हमने कुछ वेजिस पे किया, तो मोबाइल्स खरीद रहे हो, उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर रहे हो और आगे सेल कर, तो आपके फैक्ट्री के अंदर थोड़े बहुत वर्कर्स है, तो आपने उनको क्या पे किया, वेजिस पे कर दिया। तो वेजेस आपने पे किया लेटेस्ट से 4,000 रुपीज, पूरे साल का वेजेस आपने पे कर दिया 4,000। What entry will pass for that? Wages to cash. Wages to cash. That should be 4,000. अच्छा, उसके बाद आपने प्रोडक्ट तो खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, वेजेस वेजेस से प्रोसेस भी करवा लिया, ट्रांसपोर्टेशन भी उस पर खरीदने का पे कर दिया, अभी बेचने की बारी आई। तो बेचने के लिए शायद आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट करना पड़े, कुछ पब्लिसाइज करना पड़े, कुछ इवेंट इवेंट रखनी पड़े, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, लेटेस्ट से 4,000 रुपये आपका एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हो गया। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग एडवर्टाइजमेंट? सो इट इज एडवर्टाइजमेंट टू कैश। लेटेस्ट से 4,000 रुपीज आपने किस पे स्पेंड किया, एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड किया। उसके बाद आपने कोई नट्टू काका बागा जैसा कोई एम्प्लॉय रखा है माल वाल बेचने के लिए, या फिर दुकान संभालने के लिए, या शॉप प्रीमाइसेस संभालने के लिए, तो उसको आपने क्या पे करनी है, सैलरी पे करनी है। तो साल की समझो 3,000 रुपए आपने सैलरी पे करनी है। कितनी, 3,000 रुपीज यू आर पेड अ सैलरी। देखो फिगर्स पे मत जाओ, आप जितने जीरोस लगाने लगा सकते हो, कंसेप्ट यू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज हैपनिंग। तो आपने 3,000 रुपीज की एनुअल सैलरी पे कर दी है, फुल ईयर की मिला के बोल रहा हूँ, मंथली मंथली करोगे वो भी पूरे साल में मिला के सब 3,000 हो रही है ऐसे। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर दैट, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश। लेटर से 3,000 की सैलरी पे कर। अच्छा, उसके बाद आपने जो जगह वगह खरीदी नहीं है, लेटर से खरीदी होती तो वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती ना, आपने सब रेंट पे लिया हुआ, फैक्ट्री आपकी रेंट पे है, शोरूम आपका रेंट पे है, सब रेंट पे है। तो आपको फैक्ट्री वैक्ट्री का लफड़ा देखने की जरूरत नहीं, मतलब प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, रेंट पे कर रहे हो आप। तो फुल ईयर का लेटेस्ट अज्यूम 3,000 रुपीज यू आर पेइंग रेंट। कितना, 3,000 का रेंट पे कर रहे हो। व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग रेंट, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, 3,000 रुपीज आपने रेंट पे किया, ठीक है। उसके बाद और एक खर्चा आपको लगा रहेगा यहाँ पे, दैट इज ये जो आपने फर्नीचर खरीदा है, आपने ये चैप्टर अभी अभी सीखा हुआ है, ये फर्नीचर आपने एक साल यूज किया है। लेट अस अज्यूम द लाइफ इज 10 years एंड यू आर फॉलोइंग FIM मेथड। तो आप क्या करोगे, इस फर्नीचर डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे। कितना डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, 2,000 रुपीज डेप्री चार्ज होगा ना। और व्हाट इज द एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्री, डेप्रीट टू फर्नीचर, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये जो आपका शोरूम वगैरह में फर्नीचर रखा हुआ है 2,000, फर्नीचर आपने रेंट पे नहीं लिया, ऑब्वियसली फर्नीचर आपका खुद का है। जैसे ये जैसे ये जैसे ये क्लासरूम सपोज हमारा रेंट पे,
बट ये मटेरियल बेंचेस, ये एसी, ये रेंट पे नहीं है, ये एसेट्स हमारे खुद के हैं। तो जो आपका खुद का एसेट होगा उस पर आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, यू ओनली विल चार्ज डेप्रीसिएशन। बट ये क्लासरूम की जगह पे, बिल्डिंग पे मैं डेप्री चार्ज नहीं करूंगा, वो कौन करेगा? वो ओनर करेगा। जो ओनर है वही डेप्रीसिएशन चार्ज करेगा। बात समझ में आई? तो हम लोग जो भी एसेट्स पे डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे थे प्रीवियस चैप्टर में, वो सब एसेट्स वी वेर ओनिंग, कोई भाड़े पे नहीं थे, वी वेर owning those assets. The assets which you own, only those assets you depreciate. Got it? The assets which you do not own, उस पे आपको काय को डेप्रिशिएट करना, उस पे तो आप भाड़ा भरो, निकल जाओ, फिनिश। वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। वो किसका प्रॉब्लम है डेप्रिसिएशन चार्ज करना? ओनर का प्रॉब्लम। डिड यू गेट दैट? तो हमारे बिजनेस में जो जगह है वो सब रेंट पे, उसका रेंट हमने पे कर दिया, और जो फर्नीचर था वो हमारा था, तो हमने उसको डेप्रिशिएट कर दिया। जैसे मैंने फर्नीचर को डेप्रिशिएट किया, सेम वे सपोज मैंने कंप्यूटर्स खरीदे, उस पर डेप्रिसिएशन हो सकता है, एसी खरीदा है उस पर डेप्रिसिएशन हो सकता है, और कोई इक्विपमेंट्स खरीदे उस पर डेप्री, फंडा सबका सेम है। बात समझ में आ रही है? डेप्री किस पे चार्ज करोगे? जो एसेट भाड़े के हैं उस पे करोगे कि जो खुद के हैं उस पे करोगे? खुद के उस पे करो। भाड़े वाले पे हमको क्या लेना है, हम तो भाड़ा पे करेंगे और निकल जाए। बात समझ में आ गई? अच्छा, और एक लास्ट एक्सपेंस ले लेते हैं, क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक आपका रिश्तेदार तो है नहीं कि इंटरेस्ट फ्री लोन दे दे, उसको क्या पे करना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो लेटर्स अज्यूम कितने का है? 40,000 का लोन है। ओके, तो लेटर से हमने 2,000 रुपये उसको इंटरेस्ट पे किया ये साल का। व्हाट इज एंट्री फॉर पेइंग इंटरेस्ट? इंटरेस्ट टू बैंक कर देते हैं, इंटरेस्ट टू बैंक, लेटर से चेक से पे किया है 2,000 रुपये। ठीक है, तो मोटा मोटी ये साल की समरी बन गई। एक साल में आपने ये सब एक्टिविटीज किया। क्या क्या किया? लेट्स समराइज फटाफट। सबसे पहले कैपिटल आया 1 लाख का, कैश टू कैपिटल, ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल। देन यू टुक अ लोन ऑफ 40,000 फॉर सम एडिशनल मनी, आपका खुद का पैसा खत्म हो गया था, आपको और बिजनेस के लिए चाहिए था। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर टू कैश, सेटअप किया, शॉप, फैक्ट्री वगैरह सब सेटअप किया, जगह भाड़े पे ले ली थी तो रेंट एग्रीमेंट बन गया होगा। परचेज टू कैश, आपने गुड्स खरीदे पूरे साल में इतने। कैश टू सेल्स, माल बेचा आपने, प्रॉफिट्स किया, और साल भर में जब परचेज कर रहे थे उसके साथ ही आपका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा होने लगा गुड्स को खरीदने के लिए, तो आपने कैरेज पे किया, कैरेज टू कैश। थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग किया आपने गुड्स को, तो वेजेस टू कैश। एडवर्टाइजमेंट, गुड्स को प्रमोट करने के लिए आपने थोड़ी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे किए, एडवर्टाइजमेंट टू कैश। नटू काका बागा जैसे एक आध दो एम्प्लॉय रखे थे आपने शोरूम में, या ये शोरूम वाले हैं। ये जो वेजेस आपने पे किया ये फैक्ट्री वाले जो प्रोसेसिंग में काम करते हैं, जैसे कि मगन काका सोटो, ओके, डेली वेज लेबर, ओके, वो सब फैक्ट्री में प्रोसेसिंग लेबर का काम कर रहे हैं। लेबर का काम को हम लोग वेजेस पे करते हैं। ऑफिस वाले और शोरूम वाले एम्प्लॉय को हम लोग सैलरी पे करते हैं, स्टाफ सैलरी। तो ये सैलरी पे कर दी हमने। रेंट पे किया, जो जगह भाड़े पे ली थी उसका, फैक्ट्री और ऑफिस का रेंट पे किया। डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ हमारा, एक एसेट था हमारे पास, फर्नीचर। देखो फैक्ट्री हमारा एसेट है क्या? सॉरी, इज फैक्ट्री अवर एसेट? इज ऑफिस अवर एसेट? इज ऑफिस प्रीमाइसेस अवर एसेट? नो, व्हाई? रेंट पे, वो हमने ओन नहीं किया, वो रेंट पे। तो जो रेंट पे, उसका रेंट पे कर दिया, जो हमारा उस पर डेप्रीशिएशन कर दिया, और फाइनली ये जो लोन लिया हुआ है, ये लोन पे हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। ठीक है, पूरे साल में मोटा मोटी ये ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस ने कर दिया। छोटू सा बिजनेस था, मोटा मोटी यही खर्चे होने वाले हैं। अच्छा, अब जर्नल के बाद आप क्या बना दे? व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? लेजर। तो जितने जर्नल में अकाउंट्स हैं उतने लेजर अकाउंट्स भी बनेंगे आपके, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है। सो हाउ मेनी अकाउंट्स यू विल बी हैविंग इन दिस ईयर? स्टार्टिंग विथ कैश अकाउंट, राइट? हेलो, कैश अकाउंट दिखेगा। नंबर 2 कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 बैंक अकाउंट, नंबर 4 बैंक लोन, नंबर 5 फर्नीचर, नंबर 6
परचेज नंबर 7, सेल्स नंबर 8, देखते जाओ और बोलते जाओ। कैरेज, वेजिस, एडवर्टाइजमेंट और रेंट और क्या बचा? सैलरीज और डेप्री और इंटरेस्ट। एनीथिंग एल्स? बराबर है। इतने सारे अकाउंट्स बनेंगे, ये आपने सब सीखा हुआ है सेकंड टॉपिक में, दैट वाज लेजर। आपको आती है पोस्टिंग कैसे करनी है गाइड में। कैश टू कैपिटल, हाउ डू यू डू दैट? कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश, इज दैट राइट? कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश। बैंक टू बैंक लोन, बैंक में टू बैंक लोन। देखो डेट्स वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये पूरे साल की समरी, फुल ईयर के अलग अलग डेट्स पे एंट्री आई है, बैलेंस हो चुके हैं, फुल ईयर का समराइज्ड अकाउंट्स में बना रहा हूं। तो बैंक में आएगा टू बैंक लोन, कितने का लिया? 40,000। और बैंक लोन में आएगा बाय बैंक। बताओ नेक्स्ट। फर्नीचर टू कैश कैसे करना है? फर्नीचर में टू कैश, कैश में बाय फर्नीचर। कैश कहाँ गया? ऊपर है। कैश में बाय फर्नीचर, ठीक है, समझा यहां तक? फिर आता है परचेज टू कैश। तो परचेज कहाँ गया? ये रहा परचेज। परचेज में टू कैश, कैश में बाय परचेज, कैश में बाय परचेज। देखो सीजन फिनाले चल रहा है, सब पूरा रिकैप हो रहा है। पूरे साल में आपने जो जो पढ़ाई की है, एवरीथिंग विल बी नाउ रिवाइज एक साथ। ओके, देन कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स। तो क्या करोगे? कैश में टू सेल्स, ये सब किया है आपने। कैश में टू सेल्स दैट इज 90,000, और सेल्स में बाय कैश दैट इज 90,000। देन व्हाट? कार्टेज टू कैश, हाँ कैरेज टू कैश। तो कैरेज, कैरेज ये रहा, कैरेज में टू कैश कितना? 5,000। और कैश में बाय कैरेज, बाय कैरेज 5,000। व्हाट नेक्स्ट? वेजिस टू कैश। तो वेजिस में टू कैश कितना? 4,000। और कैश में बाय वेजेस दैट इज 4,000। देन एडवर्टाइजमेंट टू कैश। तो एडवर्टाइजमेंट में टू कैश, पूरे साल भर का एडवर्टाइजमेंट है इसमें 4,000। और कैश में बाय एडवर्टाइजमेंट 4,000। देन डेप्रीसिएट, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश। तो रेंट में टू कैश दैट इज 3,000। और कैश में बाय रेंट दैट इज 3,000। इज दैट राइट? देन नेक्स्ट वन क्या था आपका? डेप्री टू फर्नीचर। हाउ डू यू पोस्ट डेप्री टू फर्नीचर? डेप्री टू फर्नीचर, अभी अभी डेप्रीसिएशन टॉपिक आपने सीखा है। तो डेप्री में आप लिखते हो बड़ा सा बनाया, पर डेप्री अकाउंट बना देते, फर्नीचर अकाउंट बना देते, वही है ये। तो डेप्री में क्या दिखेगा? टू फर्नीचर, साल के एंड में कितना किया ना पे? अच्छा, सैलरी टू कैश। ओके, सैलरी टू कैश कितना था? 3,000। और कैश में बाय सैलरी 3,000। फिर डेप्री टू फर्नीचर, हाउ डू यू रिकॉर्ड दैट? डेप्री टू फर्नीचर, डेप्री में टू फर्नीचर इज हाउ मच? और फर्नीचर में
बाय डेप्री किधर गया, ये रहा, बाय डेप्री 2000, गॉट इट, इज दैट क्लियर? और क्या बचा, इंटरेस्ट टू बैंक, सो इंटरेस्ट में टू बैंक कितना 2000 और बैंक में बाय, खत्म। दिस इज द एंटायर लेजर समरी ऑफ ईयर 1, एंटायर जर्नल समरी ऑफ ईयर 1। साल खत्म हो गया, अभी ढूंढने रिजल्ट्स, तो बनाना चाहोगे आप फाइनल अकाउंट, ठीक है? तो इसके बीच में भी हमने एक छोटू सा लिंक बनाया था, अगर आपको याद होगा, हाँ, ट्रायल बैलेंस बनाया। तो जर्नल किया, जर्नल से लेजर में पोस्ट किया, फिर लेजर और फाइनल अकाउंट्स के बीच में एक लिंक रेडी की थी, ट्रायल बैलेंस। तब मैंने आपको बताया था व्हाट वाज अ ट्रायल बैलेंस, लेजर के जितने क्लोजिंग बैलेंस थे उसकी लिस्ट रेडी कर दी, और वो आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने में मदद कर रहा था, नंबर 1। एंड नंबर 2, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती थी। हाउ डू यू चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रायल बैलेंस? योर डेबिट्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस वुड बी इक्वल टू क्रेडिट्स। आप ये जब सब अकाउंट को बैलेंस करोगे ना, तो जितने डेबिट बैलेंस होंगे उतने ही क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आपके हर एक एंट्री में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो वो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने का, अभी हमने तो एरिथमेटिकली एक्यूरेसी किया ही है, तो लोचा तो मारा नहीं, आपके सामने ही है, डेबिट सा इक्वल टू क्रेडिट, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को फिलहाल होल्ड पे रखते हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे। मैंने आपको बताया था, ये भी चीज याद है, आप लेजर से डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो, बोला था, रिमेंबर? तो हम लोग लेजर से डायरेक्टली फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस को स्किप करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, वो इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको लेजर से डायरेक्टली बता दूं कैसे दिखेगा फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट्स में आप दो चीजें मेनली ढूंढना चाहते हो, two things you need to find out. What is the first thing you need to? Sorry, sir, I will compulsory attend. What is the first thing? Why do you make final account? ये तो सबको मालूम है. What is the first thing? Why do you need to make final account? Sorry? Tax कैसे पता चलेगा? Profit, result. तो फर्स्ट थिंग, आप फाइनल अकाउंट इसलिए बनाते हो क्योंकि आपको पता चलना चाहिए प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। तो फर्स्ट रीजन इज प्रॉफिट लॉस। सेकेंड रीजन होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस मतलब क्या? एक साल में आपने क्या किया, दैट इज योर प्रॉफिट लॉस। एक साल के एंड में आप कहां पहुंचे, आपने जीरो से स्टार्ट किया था ना, बिजनेस आज स्टार्ट हुआ था, दिस वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, जो जीरो से स्टार्ट हुआ, और एक साल के एंड में उसकी वैल्यू कितनी हुई। एक साल के एंड में अगर उसको अपना बिजनेस बेचना है तो कितना पैसा मिलेगा मार्केट से या बायर से, दैट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो वैल्यू एक साल के बाद कितनी बन गई, एसेट्स और लायबिलिटीज की, ये आप ढूंढने के लिए बनाते हो फाइनल अकाउंट। दो चीजें, नंबर 1 प्रॉफिट और लॉस, एंड नंबर 2 वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस यही करने के लिए बनाता है और कोई रीजन नहीं होता। अभी ये फाइनल अकाउंट्स में आपको प्रॉफिट लॉस ढूंढना है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट्स या लॉसेस कैसे पता चलते हैं? हाउ डू यू अराइव एट प्रॉफिट्स ऑफ एनी बिजनेस? प्रॉफिट कैसे ढूंढोगे, लेमैन लैंग्वेज मुझे बताओ, हाउ विल यू फाइंड आउट? इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट्स योर प्रॉफिट और लॉस। इज दैट क्लियर? और इनकम माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए फाइनल अकाउंट में हम लोग दो अकाउंट्स बनाते हैं। एक का नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरे का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक अकाउंट बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। माइंड यू, मैंने क्या लिखा हुआ है? अकाउंट। अकाउंट मतलब वो भी लेजर अकाउंट ही है, ये भी सब लेजर है, ये भी सब लेजर है, और ये भी दोनों लेजर अकाउंट्स है। लेकिन खाली फर्क क्या है, ये दो लेजर अकाउंट्स रोज रोज नहीं बनते, एंड ऑफ द ईयर लास्ट डेट पे बनते हैं, ठीक है? लास्ट डेट पे बनते हैं। दोनों अकाउंट का गोल एक ही है, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और इनफैक्ट ये दोनों एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ही जाने जाते हैं। इन दोनों का कॉमन नाम इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
Then what is trading? Trading is a subset. It's a part of profit and loss account. Trading is a part of profit and loss account. उस बच्चे को अलग क्यों बताया गया है मैं आपको बताता हूँ बात. ठीक है? Why have we separated that son from his mom? I'll tell you. So trading is a बच्चा of P&L ऐसे समझ. Trading is a part, a subset, a बच्चू of P&L. मोटा मोटी प्रॉफिट एंड लॉस एक ही अकाउंट है. अच्छा, वैल्यूज ऑफ बिजनेस, वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? मैं शुरू से बनाते आ रहा हूं, बैलेंस शीट. ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, इफ यू रिमेंबर. बैलेंस शीट, रिमेंबर व्हाट इज बैलेंस शीट? इट शोज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. बिजनेस कितने का है, वैल्यू कितनी है बिजनेस, वो आपको पता चलेगी ईयर एंड. अब हाउ टू मेक द फाइनल अकाउंट, हम लोग अपने छोटे बिजनेस का एक छोटा सा फाइनल अकाउंट बनाते हैं. अभी देखो, सबसे पहले तो लेजर को बैलेंस करना है. 12 महीने खत्म हो गए हैं. ध्यान से देखना, मैं एक एक लेजर को बैलेंस कर रहा हूं. ये महीने के एंड के बैलेंस नहीं है, माइंड यू. महीने के एंड का बैलेंसिंग सेम रहता है. महीने के एंड का बैलेंसिंग सब में बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, वो सब सेम रहता है. आपने लेजर किया हुआ है. यहाँ पे महीने महीने का, एवरी मंथली बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, ईयर के एंड का बैलेंस कर रहा हूं. क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? ईयर के एंड का बैलेंस कर रहा हूं. फोकस नाउ, ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड. ओके, यहां से गाड़ी अलग हो रही है. कैश 90,000 और 1,90,000, दैट राइट? डेबिट ही बड़ा होगा, क्रेडिट हो सकता है? ऑफ कोर्स डेबिट बड़ा, बराबर है. बिकॉज all assets have got, all liabilities, asset है तो डेबिट ही बड़ा होगा, लायबिलिटी है तो क्रेडिट ही बड़ा होगा, एक्सपेंस है तो डेबिट ही बड़ा होगा, और इनकम है तो 1,90,000 हो गया ये. और 190 माइनस 75, 79, 83, 86, 89, तो 1,01,000. 1,01,000 वालो शगुन का पैसा है. 1,01,000 बाय बैलेंस सीडी 1,01,000. क्या लिखा मैंने इधर? बाय बैलेंस सीडी. सर ये तो आपने नॉर्मल मंथ एंड का ही लिखा ना. मंथ एंड पे भी यही लिखते हो, बाय बैलेंस सीडी और टू बैलेंस बीडी. ईयर एंड पे भी यही लिखने का. हाँ, क्योंकि एसेट और लायबिलिटीज की लाइफ चलती रहती है. एक साल में खत्म, ये कैश आपको आगे भी काम आएगा. बात समझ में आई? तो ये एसेट और लायबिलिटी का अकाउंट आप चाहे मंथ एंड पे कर रहे हो कि चाहे ईयर एंड पे कर रहे हो, बैलेंसिंग पार्ट विल रिमेन वैसे ही. कैरी फॉरवर्ड करने का, कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये साल जब खत्म हुआ तब आपके पास कितना पैसा बचा? 1,01,000. तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आपके पास कितना कैश पड़ा हुआ है? 1,01,000 to pay off your expense, to buy assets, whatever. Is that clear? 1,01,000 रुपया कैश हमारे पास बिजनेस में पड़ा हुआ है. अच्छा, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, इतना पैसा बचा. बोलो फिर क्लियर? अब कैपिटल, कैपिटल में विच साइड इज ग्रेटर? आई थिंक क्रेडिट साइड इज ग्रेटर. 1,00,000 यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने. कैन यू सी दैट? सो 1,00,000 का टोटल और ये 1,00,000 का टोटल, और बैलेंस कितना मिलेगा? टू बैलेंस सीडी कितना रहेगा? 1,00,000. टू बैलेंस सीडी 1,00,000. अगेन कैन यू सी दिस? ये जो बैलेंस है ये समझो अपना ईयर एंड है 31 मार्च 21. 31 मार्च 21 लास्ट डेट का भी बैलेंस मैंने नॉर्मली लिखा, जैसे मैं मंथ एंड का लिखता हूँ. मंथली आप जैसे बैलेंस करते हो ना, टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी, ईयर एंड पे भी मैंने वैसे ही किया. क्यों ऐसे ही किया? क्योंकि कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. यस और नो? अभी अभी मैंने क्या बोला? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मंथली बैलेंस हो कि ईयरली बैलेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में. ओनर ने जो 1,00,000 रुपया डाला हुआ है वो नेक्स्ट ईयर इंटरनल लायबिलिटी बन के दिखेगा, ओनर को देना बाकी है. आर यू ऑल विथ मी? थर्ड अकाउंट, which account we have? Bank. What is bank? Asset. 40,000 रुपया आया
और 2000 रुपया गया, तो बैलेंस कितना बचा ईयर एंड पे? 38,000 बचा. 40 minus 2, yes. What will you write here end में? By balance CD. By balance CD कितना? 38,000. ये भी बैलेंस. तो आपको दिख रहा है एसेट और लाइबिलिटी मंथ एंड पे हो या ईयर एंड पे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. दोनों सिमिलर ही दिखते हैं. दोनों सिमिलर ही दिखते हैं. इज दैट क्लियर? उसके बाद बैंक लोन. व्हाट इज बैंक लोन? Which liability? External. What is the difference between internal and external liability? Internal मतलब ओनर को देना बाकी है और एक्सटर्नल मतलब बाहर वालों को देना बाकी है. Is that clear? तो बैंक लोन हमने 40,000 का लिया था ये साल. क्या हमने कुछ भी चुकाया? तो वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के उधार में. तो अपना बैंक लोन कितना पड़ा हुआ है अभी यहाँ पे? 40,000 minus 0. What is the balance? 40,000. ये क्या लिखोगे यहाँ पे? टू बैलेंस CD. ये सब चीजें आपने की हुई है ऑलरेडी, बैलेंसिंग वगैरह. सेम ही चीज कर रहा हूं मैं. फर्नीचर. व्हाट इज फर्नीचर? अभी अभी आपने बनाया हुआ है फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेप्री चैप्टर में पूरा. एक साल के एंड में क्या लिखते थे फर्नीचर में आप? ये डेबिट माइनस क्रेडिट. ये खरीदा, ये डेप्रिशिएट किया, तो क्या बचेगा? 18,000. व्हाट इज दैट? 18,000. बैलेंस. दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD. लेट अस से 31st March 21. ऑल द डेट्स आर 31st March 21. आर यू ऑल विथ मी? घर वालों को समझ रहे हैं यहाँ तक? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मैं कोई चेंज कर रहा हूं? Whether it is month end or year end, will it have any change in the balancing part? Nothing. Comfortable? पक्का? क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटीज की लाइफ एक साल में खत्म नहीं होती है. नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है. एसेट्स मतलब पैसा आना बाकी है, बेनिफिट मिलना बाकी है. लायबिलिटीज का मतलब पैसा या बेनिफिट देना बाकी, फ्यूचर में भी चालू रहेंगे. नेक्स्ट परचेज. व्हाट इज परचेज? Expense. Purchase is the biggest expense of this year. Purchase is the biggest expense. इस साल का परचेज 50,000 हुआ है. क्या ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं होगा. इसका लाइफ इधर ही खत्म. क्यों खत्म कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें इस साल का प्रॉफिट लॉस ढूंढना है. प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए इसको खत्म कर. आपको 2 साल के एंड में प्रॉफिट लॉस ढूंढना है तो 2 साल के बाद करो उसको ट्राई, तो भी चलेगा. लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते. हम लोग कब ढूंढते हैं प्रॉफिट लॉस? एक साल के एंड में. और प्रॉफिट लॉस के लिए इनकम और एक्सपेंस चाहिए अपने को. तो हम लोग क्या करेंगे? जितने इनकम और एक्सपेंस होंगे उनकी लाइफ कितनी कर देंगे? 1 ईयर के एंड में क्या होगा? देखो, ये परचेज का डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट बढ़ा है? डेबिट बढ़ा है. कैन यू सी दिस? हेलो. 50,000. देखो मंथ एंड पे होता तो मैं बैलेंस लिख देता, लेकिन अभी क्या चल रहा है? तो मैं इधर बाय बैलेंस CD नहीं लिखेगा. मैं क्या लिखेगा? बाय ट्रेडिंग अकाउंट. बाय ट्रेडिंग अकाउंट. क्या लिखेगा मैं? बाय ट्रेडिंग अकाउंट. अभी क्यों मैंने बाय ट्रेडिंग लिखा? कारण बताऊं. ओके. बाय ट्रेडिंग, इसको मैं ट्रेडिंग में ट्रांसफर करूं. ठीक है. तो ये बाय ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में क्या है? टू परचेज, करस्पॉन्डिंग एंट्री. दिस इज कॉल्ड एज द क्लोजिंग एंट्री. दिस इज कॉल्ड एज द क्लोजिंग एंट्री. आपने एक क्लोजिंग एंट्री ऑलरेडी सीख ली है डेप्रिसिएशन चैप्टर को, आएगा तभी आपको क्लिक होगा. तो यहां पे मैंने क्या लिखा है? बाय ट्रेडिंग. बाय PNL नहीं लिखा, बाय ट्रेडिंग. और ट्रेडिंग में क्या आएगा? टू परचेज. कितना? 50,000. समझ में आ रहा है? फिर आ जाओ सेल्स पे. व्हाट इज सेल्स? इनकम. विल यू कैरी इट फॉरवर्ड एज बैलेंस? नो, यू विल नॉट कैरी इट फॉरवर्ड एज बैलेंस. इसमें कितना बैलेंस है? ये 90 minus 0 is what? 90,000. Is that right? What will I write over here? To balance नहीं, to trading.
टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू माइंड यू मंथ एंड पे नहीं कर रहा हूं, कब कर रहा हूं, ईयर एंड पे कर रहा हूं। टू ट्रेडिंग का करस्पॉन्डिंग एंट्री ट्रेडिंग में आएगा बाय सेल्स, बाय सेल्स 90,000। इज दैट क्लियर? क्यों ट्रेडिंग लिखा सब पता चलेगा। कैरेज, 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 व्हाट इज कैरेज? एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। एक्सपेंस वो माल खरीदने का एक्सपेंस था। तो 5,000 रुपीज, दिस इज 5,000 रुपीज, ओके, माल मतलब गुड्स। कैरेज में टू कैश, कैरेज में टू कैश बोलना पड़ता है, देखो ऐसे, कैरेज में टू कैश, ओके। Everyone just wants a moment to get high. चलो, कैरेज में टू कैश लिखा है। अभी listen, अगर ये मंथली होता तो मैं बैलेंस लिखता, लेकिन अब तो क्या हो गया, ईयर एंड आ। तो बाय ट्रेडिंग, बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखूंगा मैं, कितना, 5,000, ईयर एंड है 31 मार्च 21। बाय ट्रेडिंग का करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगा टू कैरेज अकाउंट, दिस इज कितना, 5,000, ओके। ये खाली करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में पास कर, समझ में आ रहा है आपको? इधर के अकाउंट्स बंद कर रहा हूं, वहां पे ट्रांसफर करते जाओ। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट वन, वेजेस अकाउंट देखो। वेजेस अकाउंट, वेजेस में टू कैश ऑलरेडी आ चुका है, इसको बंद करो। विच साइड इज ग्रेटर, डेबिट साइड। 4,000, 4,000 क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय बैलेंस नहीं, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय ट्रेडिंग अकाउंट 4,000, 31 मार्च 21। अच्छा, बाय ट्रेडिंग का करस्पॉन्डिंग एंट्री, ट्रेडिंग में क्या आएगा, बाय ट्रेडिंग का करस्पॉन्डिंग एंट्री टू वेजेस अकाउंट। कैन यू सी दैट? हेलो, बाय ट्रेडिंग का करस्पॉन्डिंग एंट्रीज टू वेजेस अकाउंट। खाली सिंपल करस्पॉन्डिंग मार रहा हूं मैं, वो भी अकाउंट है, ये भी अकाउंट है। अच्छा 4,000, ये भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ही मार रहा हूं मैं। आई वॉज चेकिंग वेदर यू आर पेइंग। अभी बाय ट्रेडिंग का सिंपल एंट्रीज टू, और टू ट्रेडिंग का सिंपल एंट्रीज आर बाय। लेकिन गम्मत, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट को एकदम ध्यान से देखो, ट्रेडिंग अकाउंट को एकदम ध्यान से देखो ऐसा, तो आपको क्या दिखेगा, automatically the incomes are on the credit side and ट्रेडिंग को ध्यान से देखो, मेरे को नहीं, ट्रेडिंग को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली इनकम है ना, क्रेडिट में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और एक्सपेंस है ना, डेबिट में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमने कुछ किया ही नहीं है, हमने क्या किया, सीधा अकाउंट को बंद करना था, 12वां महीना आया, जिधर डिफरेंस दिखा उधर लिख दिया टू ट्रेडिंग या बाय ट्रेडिंग। अपने आप देखो, सेल्स में आया टू ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग में आया बाय सेल्स, कैरेज वेजेस परचेज में आया बाय ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग में आया टू परचेज, टू कैरेज, टू वेजेस। दे विल सेट इट ऑफ देमसेल्व्स ओनली, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इनकम्स विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड। ऐसा ही होगा, कभी क्रॉस कनेक्शन नहीं होने वाला कि एक्सपेंस क्रेडिट में पहुंच गया और इनकम डेबिट में। इट्स नेवर गोइंग टू बी पॉसिबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ध्यान से देखो सब लोग बॉस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ओके। Which side is greater? Obviously debit because it is an expense. 4,000, 4,000. अभी इधर भी 4,000 बैलेंस है,
क्या लिखूंगा मैं? बाय बैलेंस नहीं, बाय ट्रेडिंग भी नहीं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों सर, ऐसा क्यों? मेरी मर्जी, नहीं लिखने का बस। इसके पीछे रीजन है, बताएगा। सो ये राज की बात, ये राज अंत में खुलेगा। सो बाय पीएनएच, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का करस्पॉन्डिंग एंट्री पीएनएल में क्या आएगा? एडवर्टाइजमेंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। देखो मैंने गाड़ी चेंज कर दी है, ट्रैक चेंज किया है। अब तक हम लोग क्या लिख रहे थे? ट्रेडिंग 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 ट्रेडिंग। सडनली अभी मैंने क्या चेंज कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस। रेंट क्या लिखा है? रेंट, रेंट इज एन एक्सपेंस। 3000, साइलेंस नाउ। देखो आधा 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 अधूरा समझ के ना कुछ नहीं होने वाला, एंड तक समझो इसको। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए ना, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आपका पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा फाइनल अकाउंट। बेसिक दिमाग में फिट हो गया ना क्या करना है। हाँ, क्या मजाक कर रहा हूं मैं आपसे? इसलिए बोल रहा हूं, मस्ती मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू। क्या मैं मस्ती नहीं करता? रेंट, which side of rent is greater? 3000 debit side, so 3000 3000 3000, ठीक है। ये आएगा बाय, बैलेंस नहीं लिखने का, ट्रेडिंग भी नहीं लिखने का, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 21। और पीएनएल में क्या है? इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा टू रेंट। प्रॉफिट लॉस में टू प्रॉफिट लॉस नहीं लिखने का रे, बताऊंगा। यही तो राज है, यही तो समझना है। सैलरी, सैलरी अगेन डेबिट इज ग्रेटर, तो डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट। हाउ मच यू आर गेटिंग? 3000। नॉर्मल मंथली होता तो मैं बाय बैलेंस सीडी लिखता, अभी नहीं लिखेगा मैं। अभी क्या लिखेगा? बाय ट्रेडिंग में नहीं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस का करस्पॉन्डिंग एंट्री टू सैलरी अकाउंट, टू सैलरी अकाउंट 3000। डेप्रीसिएशन, ये तो आपने बनाया हुआ है अकाउंट, आपको मालूम है ईयर एंड पे करते हो आप, चैप्टर में करते हो। क्या करते थे आप? ये 2000 2000 और क्या लिखते थे? हाँ, ये तो आपको मालूम है, तो आप ही बोलोगे बाय पीएनएल। लेकिन क्यों बाय पीएनएल? हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने ही बोला है आपको, इसलिए आप छाप रहे हो, ठीक है। फिर आपको रीजन पता चले। तो बाय पीएनएल का करस्पॉन्डिंग एंट्री वापस पीएनएल में आएगा टू डेप्रीसिएशन। कौन बोला पीएनएल में पीएनएल? Now, these are all corresponding entries. Pay attention. The last item, interest. Interest. ये भी 2000 है, ये भी 2000 है, लिसान, ये भी 2000 है। ईयर एंड हो गया, एक्सपेंस है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है? एक्सपेंस है। एसेट लाइबिलिटी है क्या? नहीं, तो ट्रांसफर कर देने का, लाइफ खत्म हो गया। किधर? बाय ट्रेडिंग नहीं, बाय पीएनएल अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और बाय पीएनएल का करस्पॉन्डिंग एंट्री इधर आएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना? 2000। यहां तक समझ में आया? देखो ऑटोमेटिकली इनकम इज ऑन द क्रेडिट साइड। एक ही इनकम हुआ था अपना अभी तक, क्या था? एक्सपेंसेस आर ऑटोमेटिकली ऑन द डेबिट साइड, आइदर ऑफ ट्रेडिंग और ऑफ, कुछ ट्रेडिंग में गए हैं, कुछ पीएनएल में गए हैं। क्यों गए हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब लेट अस फिनिश ऑफ
the remaining part, that is assets and liabilities. क्या क्या assets और liabilities है? सबसे पहले था कैश. कितना कैश था हमारे पास? 1 लाख. अब लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है. कैश में मैंने क्या लिखा है? बाय बैलेंस सीडी लिखा है. तो कैश विल गेट कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज टू बैलेंस बीडी. जैसे आपका फर्नीचर अकाउंट और मशीनरी अकाउंट ऑफ डेप्री चैप्टर में करते थे, 3-3 साल का बनाते थे. तो वो एसेट क्या होता था? बाय बैलेंस सीडी यूज्ड टू बिकम टू बैलेंस बीडी. वापस ट्रांजैक्शन, वापस बाय बैलेंस सीडी यूज्ड टू बिकम टू बैलेंस बीडी. सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल टू ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज. वो बाय बैलेंस सीडी विल बिकम टू बैलेंस बीडी. वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होते रहता. बोलने का मतलब कहीं ट्रांसफर नहीं होता, सॉरी, कहीं ट्रांसफर नहीं होता. तो इसीलिए यहां पे दिख रहा है मैंने क्या लिखी है? बैलेंस शीट. मैंने ऐसे नहीं लिखा बैलेंस शीट अकाउंट. बैलेंस शीट. What is a balance sheet? It's a sheet. It's a list that shows the values of assets and liabilities at the end of the year. वो बैलेंस शीट क्या है? एक लिस्ट है जो आपको क्या दिखाती है? आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज एट दी. वो एक लिस्ट है. आपने जो बैलेंस यहाँ पे लिखे है ना, उसको छाप देने, उसकी लिस्ट बनानी. तो ऐसा नहीं है कि इधर बाय बैलेंस सीडी है तो बैलेंस शीट में 2 आएगा. ये कोई एंट्री नहीं हो रही, ये कोई जर्नल एंट्री नहीं है, ये कोई ट्रांसफर एंट्रीज नहीं है. ये जैसे ट्रांसफर हो रहे थे ना, बाय टू बाय, ऐसे कुछ ट्रांसफर नहीं होता एसेट और लायबिलिटी. एसेट और लायबिलिटी का क्या होता है? ये जो बैलेंस है ना, इसको देखने का और इसको छापने का. आप बैलेंस शीट बनाओ मत बनाओ, वो एसेट अकाउंट ऐसे ही चालू रहेगा. बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस बीडी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. आप खाली अपनी जानकारी के लिए कि भाई आपका बिजनेस का वैल्यू क्या हुआ एक साल के एंड में, उसके लिए आप एक लिस्ट बना दो. तो बोलने का मतलब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है. क्या है? अकाउंट. उसमें क्या हुआ? ये सब छोटू छोटू इनकम और एक्सपेंस बंद होके ट्रांसफर हो, लेकिन बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है. बैलेंस शीट इज जस्ट अ लिस्ट. उसमें आप खाली एसेट और लायबिलिटी का नाम छाप के लिख देते, कॉपी करके लिख देते हो. क्यों लिख देते हो? जस्ट टू नो द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस. जस्ट टू नो द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस. इज दिस क्लियर? क्या बोला मैंने? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? अकाउंट. बिगेस्ट नॉमिनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. बिगेस्ट नॉमिनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. क्यों बनाए गए? सब छोटे छोटे नॉमिनल अकाउंट्स बंद कर दिए और कहां घुसा दिए? ट्रेडिंग और पीएनएल. बट बैलेंस शीट, इज इट एन अकाउंट? इट इज अ स्टेटमेंट. इट इज अ स्टेटमेंट. इट इज अ लिस्ट showing the values of your assets and. So will you close down the assets and transfer them to balance sheet, or will you close down the liabilities and transfer them to balance sheet? No, just copy them. Just copy the closing balance, छापो, लिखो, बस. ओके. कैश कितना बैलेंस है? 1 लाख. तो कैश इधर लिख दूंगा मैं 1,01,000 because it is an asset. Always the left hand side would be liabilities, the right hand side would be from your. यहाँ पे right liability, left assets. यहाँ पे देखो capital. What is capital? Internal liability. तो capital कितना है? capital 1 लाख. कैपिटल इज 1 लाख रुपीज. एंड ऑफ द ईयर 1 लाख बच गया. ओके. क्यों मैंने कॉलम में नहीं लिखा? राज. बैंक में देखो, बैंक में कितना बैलेंस बचा है? अबे 38 है ना. 40 माइनस 2 38 हो गया ना. बैंक, बैंक क्या है? एसेट. मतलब आपके पास अंत में इतना बैलेंस बैंक में बच गया. तो ये आप बैंक लिख दो यहाँ पे छाप के. कितना है? 38. देन बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी. तो यहाँ पे बैंक लोन लिख दिया मैंने. लायबिलिटी में कितना है लोन का बैलेंस? 40,000. मैं सब बैलेंसेस छाप के लिख रहा हूं. जैसे आपने ट्रायल बैलेंस में छाप के लिखे थे ना, वैसे ही छाप के लिख रहा हूं. फिर फर्नीचर 18,000. क्या है वो फर्नीचर? एसेट. तो फर्नीचर 18,000 इज एसेट.
इज दैट क्लियर? फिर और कुछ खत्म? आई थिंक यहां से सब एक्सपेंस इनकम थे जो ऑलरेडी ऊपर जा चुके, ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं ये ब्रेकअप पे, इन दोनों को अलग क्यों किया गया, क्यों मैंने सबको ट्रेडिंग में नहीं डाला और क्यों मैंने सबको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाला, ठीक है। एनीवन वॉचेस शार्क टैंक? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपने देखा होगा, और जो लोग ने नहीं देखा है, एडवाइस करता हूं प्लीज यूट्यूब पे जाना, 4-5 एपिसोड्स देख लेना रैंडमली उठा के, हर एक एपिसोड में इसकी चर्चा होती है। वो लोग ग्रॉस मार्जिन नाम की एक चीज पूछते हैं, अगर आपको पता होगा, आपकी ग्रॉस मार्जिन कितनी है, सुना है आपने? प्रोडक्ट की ग्रॉस मार्जिन कितनी है, और बाद में पूछते हैं नेट मार्जिन कितनी है, नेट मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन। रिमेंबर, दैट इज व्हाई वी शो दीज टू अकाउंट सेपरेटली। ये आपको ग्रॉस मार्जिन दिखाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, और ये आपको नेट मार्जिन दिखाता है, मतलब नेट प्रॉफिट। इन दोनों में फर्क क्या है? ओके, यहां पे मैंने जो इनकम और एक्सपेंस लिखे हैं ना ऊपर, ट्रेडिंग में मैंने जो इनकम और एक्सपेंस लिखे हुए हैं, दे आर द कोर इनकम्स एंड कोर एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंस। मीनिंग अगर ये इनकम और ये एक्सपेंस नहीं होंगे तो बिजनेस चलने वाला नहीं है, सिंपल। और देखो, ऑब्वियसली सेल्स इज द बिगेस्ट इनकम ऑफ द बिजनेस, सेल्स इज द बिगेस्ट इनकम, वो तो करना ही है, ट्रेडर हो आप, सेल नहीं करोगे तो धंधा कैसे चलेगा। अब ये सेल होने के लिए ना, 90,000 के जो मोबाइल फोन आपने बेचे हैं ना, उसके लिए झक मार के आपको ये खर्चे करने ही पड़े। देखो क्या खर्चे लिखे हैं मैंने, परचेज लिखा है, परचेज नहीं करोगे तो बेच पाओगे, नॉट पॉसिबल। कैरेज लिखा है, ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं दोगे तो माल आएगा ही नहीं, तो बेचोगे कहां से, तंबूरा। और वेजिस लिखा है, वेजिस मतलब वो प्रोसेसिंग का खर्चा, तो अगर मोबाइल आके प्रोसेस नहीं हुए, आपका धंधा वही है, प्रोसेस मोबाइल बेचना, कस्टमाइज बेचना, तो आप बेचने वाले नहीं हो। इन शॉर्ट, दीज एक्सपेंसेस आर कंटिन्यूअसली वेरिएबल विथ सेल्स, मतलब जितना सेल्स बढ़ेगा उतना ये खर्चा बढ़ेगा, जितना सेल्स घटेगा, जितना मोबाइल फोन घटेगा आपका बेचने का, उतना ये खर्चा घटेगा। ये कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता। बोलने का मतलब, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं 20,000 के मोबाइल फोन खरीदूंगा और 90,000 में बेच दूंगा, मेरे को ऐसा करना है धंधा। मार्केट में आपको प्राइस कॉम्पिटिटिव रखना पड़ता है, बाकी लोग 50 के 90 में बेच रहे तो आपको भी 50 का 90 में बेचना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं 20 में खरीदूंगा और 90 में बेचूंगा, इज इट पॉसिबल? No, you cannot do that. You will have to buy those mobile phone at that price, somewhat competitive range, and you will have to sell it at that competitive range. In short, ट्रेडिंग में जो खर्चे हैं वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते, कम ज्यादा नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको कम करना। कर सकते हो लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कैरेज हो गया, आप बोलोगे मैं कैरेज नहीं देगा, जा, या कैरेज में मेरे को 50% का डिस्काउंट करके दी, वो अगर माना तो ठीक है, नहीं माना तो देना ही पड़ेगा आपको। कैरेज नहीं दिया तो माल आने वाला, समझ में आ रही है बात? तो ट्रेडिंग में जो इनकम और एक्सपेंस होता है, दे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या नाम है इसका? वंस अगेन, ट्रेडिंग अकाउंट में जो इनकम और एक्सपेंस दिखता है, दैट इज विच एक्सपेंस एंड इनकम? डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मतलब इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंटिन्यूअसली वेरिएबल रहते हैं। मतलब एक यूनिट मोबाइल फोन आप बेच रहे हो, लेट से 10 यूनिट का 90,000 है, एक यूनिट का 9,000 है, तो ये सब खर्चे पर यूनिट इतने लग गए आपको। 5,000 का परचेस कॉस्ट लग गया, 500 का कैरेज लग गया, और 400 का वेजेस लग गया। पर यूनिट आपको 5,500 और 400, 5,900 रुपया खर्चा लग ही गया, उसको आप कम नहीं कर सकते। तो इसलिए इन खर्चों को अलग दिखा देते हैं, तो सर नीचे वाले खर्चे कौन से? लेट्स फोकस ऑन दैट। ये जो खर्चे आपको दिख रहे हैं ना, इनमें आप चेंजेस कर सकते हो, इन खर्चों को कम भी कर सकते हो,
इन खर्चों में से कुछ खर्चे निकाल भी सकते हो, तो भी आपकी एक्टिविटीज चालू रहेंगी, तो भी आपकी एक्टिविटीज चालू रहेंगी, तो वो इफेक्ट नहीं होने वाली। एग्जाम्पल दे, सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, टेल यू माई क्लास बिजनेस, वी डोंट एडवर्टाइज ओनली, you have seen our advertisements anywhere, still it is working. So advertisement क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, आपका बिजनेस को है ना फास्ट करता है, जंप करता है, सेल्स फास्ट होने के लिए होता है, लेकिन वो नहीं भी करोगे ना तो बिजनेस एक्टिविटीज हैम्पर होने वाला, स्लोली एंड ग्रेजुअली चलते रहेगा। तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कल उठ के ये बिजनेस ना भी करे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला। रेंट दिख रहा है आपको, कैन यू सी दैट रेंट? अभी समझो इसको, सपोज ये क्लासरूम का एग्जांपल ले लो, ओके, क्लासरूम का है, सपोज यू आर राइट नाउ अराउंड 30 पीपल, बट यू आर सिटिंग स्कैटर्ड। मैं यही 30 पीपल को वो क्लास में ले लूं, उधर का भी कैपेसिटी 30 है, बट लेकिन आप बाजू बाजू में बैठेगा, बट यू विल बी स्टिल एबल टू अटेंड द लेक्चर। मेरा रेंट आधा हो जाएगा, मेरा रेंट एक्सपेंस हाफ हो जाएगा। नट्टू काका और बागा जेठालाल के ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस का भाड़ा वो समझो 3000 पे कर रहा है, कल उठ के जेठालाल ने ऑफिस आधा कर दिया, शोरूम आधा कर दिया, वही माल सामान बैठा है, कंजेस्टेड कर दिया थोड़ा, एम्प्लॉय फिर भी बैठ के काम कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं उनको डांस करना है, फ्लोर स्पेस चाहिए, करते हैं कभी कभी, बट जनरली दे डोंट नीड दैट एक्स्ट्रा फ्लोर स्पेस यूजुअली, आप रखते हो बट ना भी हो तो भी काम हो सकता। सो बोलने का मतलब, आपने ऑफिसेस देखी होंगी मूवीज में या टीवी पे, कोई कोई ऑफिसेस होती है ना बहुत लैविश एरिया में बनाई जाती है, बहुत फ्री स्पेस होता है, एक केबिन इधर, एक उधर, एक इधर, और ऐसी भी ऑफिसेज आपने देखी होंगी जैसे वो जेल का प्रिजन सेल्स होता है वैसा केबिन्स बनाया रहता है, मेरा इधर चिपक के बाजू में दूसरा, चिपक के बाजू में तीसरा, ऐसा भी देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? तो वो लोग क्या करते हैं, रेंट एक्सपेंस में कटौती कर लेते हैं। वही चीज अगर वो लोग लैविश एरिया में करेंगे उनको ज्यादा रेंट पे करना पड़ेगा, वही चीज कंजेस्टेड में, काम तो हो ही रहा है, ये एक्टिविटीज हैम्पर होने वाली। तीसरा देखो सैलरी, ये तो बहुत हुआ था कोविड टाइम में, आपके एम्प्लॉयज 10 हैं, 10 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 10 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय की सैलरी लेटर से आप 3000 रुपए दे रहे हो सब मिला के, कोविड टाइम आ गया, अब जो एम्प्लॉय बेचारा नॉर्मली काम करता है ना वो ह्यूमन बीइंग के जैसा काम करता है 8 घंटे, लेकिन जब डायर कंसिक्वेंसेस आती हैं या बिजनेस में खर्चे बढ़ जाते हैं ना तो बिजनेस क्या बोलेगा, देखिए 5 एम्प्लॉय जो अच्छे खासे काम करने वाले होंगे उनको बुलाएगा, बोलेगा आपको अभी 8 का 12 घंटा काम करना है, आपको अभी 8 का 12 घंटा काम करना है या 13 घंटा काम करना है, और बाकी 5 को सैक कर देगा, निकाल देगा। और वो जो 3000 की सैलरी है ना जो 10 लोगों को दी जा रही थी, वो 3000 की सैलरी में से 1000 काट के 2000 कर देगा और वो 5 लोगों को देगा, या 2500 करके 5 लोगों को दे देगा। तो वो क्या करेगा, अपना खर्चा कम करके एक एक एम्प्लॉय का काम का बर्डन, आपने सुना होगा यार वर्क फ्रॉम होम बर्डन बहुत बढ़ गया है, कॉर्पोरेट बहुत बिजनेसेस ने ऐसा किया था कोविड में, क्या किया था, वर्क फोर्स को, कोविड में धंधा कम हो गया था, डिमांड कम हो गई थी, सेल हो नहीं रहा था, तो खर्चा कम करना पड़ेगा, यस और नो? तो खर्चा कम करने के लिए क्या किया वो लोग ने, एम्प्लॉयज को सैक करना चालू कर दिया, तो ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय उनको थोड़ा ज्यादा काम आ गया, उनका पगार थोड़ा सा बढ़ा दिया, लेकिन ओवरऑल पगार तो कम हो गया, काम उतना ही हो रहा है, ओवरऑल पगार कम हो गया, आपका एक्टिविटीज हैम्पर। तो ये सब जो चीजें होती हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में होती हैं, ये सब आप कभी कम करो, थोड़ा कटौती कर दो, रिमूव कर दो ये एक्सपेंस, फिर भी आपका धंधा चालू रहेगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन जो ट्रेडिंग अकाउंट वाला खर्चा होता है वो क्या होता है, कोर एक्सपेंस होता है। व्हाट इज दैट? कोर एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल। सेल बढ़ेगा खर्चा बढ़ेगा,
सेल घटेगा, खर्चा ज्यादा, कटौती कम ज्यादा नहीं कर सकते। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। घर वालों को समझ में आ रहा है कंसेप्ट? पीएनएल वाले जो एक्सपेंस है उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट। कम ज्यादा करोगे, कटौती भी कर दोगे, धंधा इफेक्ट होने वाला। इसीलिए बिजनेस क्या करता है, अपनी तसल्ली के लिए, अपनी जानकारी के लिए डायरेक्ट को थोड़ा अलग रखता है, इनडायरेक्ट को थोड़ा अलग रखता है। ठीक है? वैसे मैं चाहूं तो ये बॉर्डर हटा सकता हूं, एक साथ पूरी इनकम एक्सपेंस दिख जाएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा ना इसमें इंपॉर्टेंट वाले कौन से और लेस इंपॉर्टेंट वाले कौन से। मैं फोकस किस पे करूं? मुझे धंधे का अगर कोर प्रॉफिट पे ध्यान देना है तो मैं कौन से एक्सपेंस पे सबसे ज्यादा ध्यान रखूंगा? सबसे ज्यादा ध्यान कौन से खर्चों पे रखूंगा? डायरेक्ट, मोर इम्पोर्टेंट, उस पे फोकस रखो। लेस इंपॉर्टेंट में तो कभी भी आप चेंजेस कर सकते। अभी जो वो शार्क टैंक का मैं बोल रहा था, शार्क टैंक इंडिया में, वो लोग जैसे ही कोई प्रोडक्ट का पिच डालने आता है ना, एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बोलता है कि हमने ये प्रोडक्ट बना है, काफी सारे आए हैं अभी। कोई चिप्स का बना के लेके आता है, कोई बिस्किट्स बना के लेके आता है, कोई कॉस्मेटिक्स का लेके आया है ब्रांड। तो वो लोग पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट का ग्रॉस मार्जिन कितना है। क्या पूछते हैं? तो वो बोलता है 35%, 40%, दैट इज अवर ग्रॉस मार्जिन। तो इसका 35-40% का मतलब क्या है? 100 रुपए का माल बेचते हैं ना, तो 40 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट। 40% ग्रॉस मार्जिन का मतलब क्या? 100 रुपए का माल बेचते हो ना, तो 40% मार्जिन मतलब 40 रुपया 100 रुपए के पीछे आप ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हो। क्या आप कमाते हो? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं? इसका डिफरेंस। आपका सेल्स कितना हुआ है? 90,000 माइनस 55 माइनस 59, तो 90। जैसे आप बैलेंस करते हो ना, बैलेंस, वैसे ही मैं बैलेंस कर रहा हूं। देखो 90 इज द बिगर टोटल, 90 इज द बिगर टोटल, 90 माइनस 59 इज हाउ मच? 31,000। 31,000 इधर लिख देगा। मैं बैलेंस नहीं लिखेगा, इधर क्या लिखेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। This is called as your gross margin. What is the gross margin percentage? Can you tell me over here? Approx 33%. It's 1/3. Can you see that? 33 to 35% is my gross margin. मतलब 100 रुपए का माल बेचूंगा ना, तो 35 रुपए का प्रॉफिट श्योर है। 35 रुपए का प्रॉफिट श्योर है, क्योंकि ये खर्चे इतने होने ही वाले हैं मेरे बेचने पे। 35% is my gross margin. समझ में आई बात? Not my final profit. Why it is not your final profit? ये खर्चे बाकी भी है, फाइनल ये वाले खर्चे अभी भी रिकॉर्ड, मतलब इसमें से माइनस नहीं हुए। Once again, how do you arrive at profit of any business? It is income minus। वैसे तो मैं ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंस साथ में कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया? इंपॉर्टेंट वाला अलग, लेस इंपॉर्टेंट वाला अलग, डायरेक्ट अलग। डायरेक्ट में मैंने क्या किया? खाली सेल्स, वो तो कोर इनकम है। अच्छा सर, सेल्स के अलावा कोई और इनकम हो सकती है कोर इनकम बिजनेस की? नहीं नहीं नहीं। अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया है तो उस पर आपको क्या मिलता है? ब्याज, इंटरेस्ट। क्या वो आपकी कोर इनकम हुई? जेठालाल गड़ा का मेन काम क्या है? मोबाइल बेचना कि इन्वेस्ट करना? मोबाइल बेचना। तो अगर इन्वेस्टमेंट किया और इनकम हो रही है ना, तो वो इनडायरेक्ट इनकम हुई। वो क्या हुई? वो यहां दिखेगी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। समझ में आया? तो इन शॉर्ट, सेल्स को छोड़ के जो भी इनकम हो रही है सब क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट। कोर इनकम क्या है? सेल्स। कोर एक्सपेंस क्या है? परचेज, वेजेस, कैरेज। ओके, इनको डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। इनमें आप कम ज्यादा नहीं कर सकते। मैं आपको ये भी शॉर्टकट बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है। बाइफर्केशन करना भी बहुत सिंपल है। देखो, इसको कहा जाता है ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस मार्जिन मतलब एवरी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यू सेल, दिस मच ग्रॉस यू विल बी अर्निंग। मोटा मोटी इतना कमा लोगे, इसमें ज्यादा चेंजेस करने पॉसिबल।
इसलिए कोई कोई बिजनेस जो आते हैं ना शार्क टैंक इंडिया में, आप देखोगे ग्रॉस मार्जिन कितना है, 80%, 90%, ऐसे भी ग्रॉस मार्जिन वाले बिजनेस होते हैं। ओके, अभी एक आया था चश्मा बेचने वाला, वो लेंस कार्ड वाला, देखा उठ गया उसको देख के। चश्मा बेच रहा था, उसको पूछा कितने में बेचता है, बोला 1200 रुपए में। और अर्बन मंकी, और उसको पूछा कि कितने में पड़ता है तुमको, बोला कपल ऑफ डॉलर्स, चाइना से इंपोर्ट करता है, दैट्स 150 रुपीज। 150 रुपए का, 150 रुपए का चश्मा 1200 रुपए में बेचता है। वो लेंस कार्ड वाला चमक गया, मैं इन्वेस्ट करेगा तेरे बिजनेस, फिर वो भाग गया, उसने नहीं लिया वगैरह, अलग बात है। बट वो ऐसा ही है, मैंने आपको शायद पहले बताया भी था, दीज फ्रेम्स इन इंडिया, द फ्रेम कॉस्ट इज अराउंड 50 रुपीज, 35-40 rupees, and in the shop you get it for 500, 800, 1000, 2000, the range is unlimited. So that is the gross margin. Okay, yeah, sorry, ये EBITDA नहीं है, EBITDA आ गया है, वो क्या है वो बताता हूं। हम लोग को EBITDA नहीं है, कंपनीज दिखाती हैं, हम लोग का प्रेजेंटेशन सीधा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में खत्म हो जाता है। दिस इज नॉट EBITDA, दिस इज ग्रॉस मार्जिन। EBITDA is earnings before interest, tax, depreciation and amortization. तो नॉन कैश वाले अलग, इंटरेस्ट से पहले का और टैक्स से पहले का, दैट इज, ये सब खर्चे आ गए, ये सब भी आ गए, खाली डेप्री और इंटरेस्ट से पहले का खर्च, पहले का प्रॉफिट। अमोर्टाइजेशन इज ऑन इंटेंजिबल एसेट, दैट इज ऑल्सो डेप्रीसिएशन, वी डोंट हैव इट ओवर हियर। गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, दैट इज अमोर्टाइजेशन। तो ये दो खर्चे निकाल दोगे ना, तो जो प्रॉफिट मिलेगा दैट इज एबिटा। अब सुनो, ग्रॉस मार्जिन का समझ में आया कैसे ढूंढना है? कैसे ढूंढना है? सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम माइनस। अब आप क्या करते हो इसको, ये ग्रॉस मार्जिन को आप पीएनएल में लेके जाते हो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, ब्रॉट डाउन। ये कुछ आपको बैलेंस की याद आ रही है? टू बैलेंस सीडी बिकम्स, मैंने शुरू में आपको बोला था, सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग जिधर खत्म होता है, पीएनएल उधर। पीएनएल की शुरुआत कहां से हुई? 31,000 ग्रॉस प्रॉफिट। इमेजिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, व्हाट इज दिस 31? इट इज 90 माइनस 59। तो इस 31 में पूरा ट्रेडिंग आ गया स्क्वीज होके, इट्स बेसिकली 90 माइनस 59। तो मैंने पूरा ट्रेडिंग का स्क्वीज्ड पार्ट किधर डाल दिया? पीएनएल में। तो पीएनएल में ऑलरेडी ट्रेडिंग के आइटम्स आ ही गए हैं, 31 का ऑलरेडी प्रॉफिट है, इसमें से ये खर्चे माइनस करो, 4 + 3 7 + 3 10 + 2 12 + 2 14। तो 31 माइनस 14, क्यों 31 माइनस 14 समझा? अभी तक का प्रॉफिट है ना 31, हेलो, माइनस ये और खर्चे किए ना अपने इनडायरेक्ट वाले, तो 31 माइनस कितने? 14 कितना होता है? 17,000। व्हाट इज दैट? 17,000, दैट इज माय नेट प्रॉफिट, दैट इज माय नेट प्रॉफिट। ओके, दिस इज माय नेट प्रॉफिट, दिस इज माय नेट प्रॉफिट। ये थोड़ा मैं इधर बैलेंस शीट लिख देता हूं। ओके, 17,000 इज योर नेट प्रॉफिट, या नेट मार्जिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आपने 90,000 का सेल किया है, आपका ग्रॉस मार्जिन कितना हुआ? अराउंड 35%। 35% कैसे पता चला? 31,000 अपॉन 90,000। 100 रुपए का माल बेचते हो तो 35%, 35% इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें और खर्चे लग गए ये सब, तो अंत में कितना बचा आपके पास? 17,000। सो व्हाट इज योर नेट मार्जिन? अप्रॉक्स 15%, 20%। सॉरी 20%, या ज्यादा होगा, 18-19%, 20% जितना, 20 से ज्यादा थोड़ा, 21-22%। 22% would be your final profit margin. Are you understanding this? समझ रहे हो?
कैसे ढूंढा मैंने 21-22%? 17,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 1। 90,000 का माल बेचा तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 21-22%, 17,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन समझ में आ रहा है? इज इट अ गुड बिजनेस? पक्का? प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट डिसेंट है, 22% इज अ गुड प्रॉफिट और अ बैड प्रॉफिट? हाउ विल यू टेल? देखो, आप प्रॉफिट को है ना जनरली किससे कंपेयर करते हो? एफडी का रेट, बॉन्ड रेट। आप अगर ऐसे इन्वेस्ट कर दोगे एफडी बॉन्ड में तो 10-11% मिलेगा। इधर तो आपको कितना मिल रहा है? अप्रोक्स 20-22% मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना? अभी देखो, ये प्रॉफिट अल्टीमेटली किसको बिलोंग करता है? ओनर को बिलोंग करता है। तो जैसे मैंने ट्रेडिंग स्क्वीज करके पीएनएल में घुसा दिया, वैसे ही पूरा ट्रेडिंग, अभी ट्रेडिंग पीएनएल में ऑलरेडी पड़ा है, पीएनएल को स्क्वीज करके कितना मिला है? नेट प्रॉफिट 17। इसको मैं कैपिटल में ऐड कर देगा, नेट प्रॉफिट 17,000। तो आपका कैपिटल कितना हो जाएगा? अभी 1,17,000। आपने शुरुआत की थी 1 लाख से, आपने शुरुआत की थी 1 लाख से। अब कैपिटल कितना हो गया? ग्रो हुआ कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? पक्का? अब ये प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड हुआ। अब बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट, ये ट्रेडिंग से आपको मिला ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट। पीएनएल से आपको मिला नेट मार्जिन। मुझे एक बात बता, क्या आपने 31 + 17 48,000 का प्रॉफिट किया है? पक्का? किसी को लग रहा है 31 और 17 48,000 का प्रॉफिट? प्रॉफिट कितने का किया फाइनल? 17। बीच में एक और प्रॉफिट ढूंढ लिया आपने, व्हाट इज दैट? ग्रॉस प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट वाला। 31 में से ये खर्चा माइनस किया तो 17 मिला, तो अल्टीमेट नेट प्रॉफिट इज 17। बात समझ में आई? ऑन अ कैपिटल ऑफ 1 lakh you earned 17,000 in year 1, so your capital now becomes 1,70,000. And this, what do you see at the end of the year? This is the value of your business. This is the value of your, कल उठ के कोई आपका बिजनेस खरीदने आएगा ना, तो आपको कितना पैसा देगा? या एसेट का पैसा देगा माइनस ये लोन काट लेगा, क्योंकि लोन उसको चुकाना पड़ेगा। तो आपको हाथ में कितना मिलेगा? 1,70,000. This is called as your net worth, equity. This is what is your equity. वो आता है 5% equity for 50 lakhs, 10% equity for 10 lakhs. This is the equity, assets minus life. बात समझ में आई? अब ये हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज अलग हो सकते हैं, कभी टोटल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप डबल एंट्री फॉलो कर रहे हो, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो हमेशा एसेट्स विल बी इक्वल टू, ऐसा कैसा? इधर 17,000 बढ़ा है प्रॉफिट में, तो इधर क्या बढ़ा है? पहले तो कैश 1 लाख डाला था, हाँ कैश बढ़ गया ना, इनकम आई तो कैश बढ़ा ना आपका, थोड़ा बैंक बढ़ा, थोड़ा कैश बढ़ा, इनकम आई होगी तो इधर ऑटोमेटिकली वो 17,000 कैश में आ चुका है। तो आपका बैलेंस शीट का टोटल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो इधर 1,57,000, ये आपका पूरा 11th स्टैंडर्ड का समरी था। समझ में आ रहा है कुछ? समझो इसको वंस अगेन, लिसन। शुरुआत कहां से होती है अपने बिजनेस की? जर्नल से कहां पे पोस्ट करते हो आप? लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, लेकिन मैंने क्या किया? ट्रायल बैलेंस बनाया। सुनो अभी मेरा बात, 1 मिनट 1 सेकेंड, लिसन प्लीज। लिसन, जर्नल से लेजर बनाया, लेजर से भी मेक ट्रायल बैलेंस। व्हाट डू यू डू इन ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस में कौन सा बैलेंस लिखते हो आप? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। अभी अगर मैं ट्रायल बैलेंस बना लूं तो उसकी मदद से क्या आप ये कर सकते हो? कर ही सकते हो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी सेल्स का बैलेंस होगा, आपको खाली सेल्स इधर छापना है, बाय सेल्स।
ट्रायल बैलेंस में परचेज लिखा होगा, आपको खाली क्या लिखना है यहाँ पे, टू परचेज। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज मैंने लेजर से की, यही चीज आपको किससे करनी है, ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनल अकाउंट कौन से रीजन से बनता है? टू रीजन, नंबर वन प्रॉफिट लॉस, नंबर टू वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बैलेंस शीट। प्रॉफिट लॉस ढूंढने के लिए दो अकाउंट्स बनाए जाते हैं। व्हाट आर द टू अकाउंट? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अलग क्यों, पीएनएल अलग क्यों? ट्रेडिंग में जाता है डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब ये एक्सपेंस में आप कम नहीं कर सकते। इससे आपको क्या पता चलता है, ग्रॉस मार्जिन, मतलब ग्रॉस मार्जिन को बढ़ाना इज अ टास्क, ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज करना इज अ बिग टास्क। इसलिए आपने शार्क टैंक अगर देखा होगा तो जैसे वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोलता है 30%, 20%, सबका मुंह उतर जाता है। 20%, जैसा वो 60-70% बोलता है तो सबका, क्योंकि उनको मालूम है कि ग्रॉस मार्जिन में चेंजेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ग्रॉस मार्जिन जितना हाई हो उतना अच्छा, पीछे के खर्चे काटने के बाद बहुत ज्यादा नेट प्रॉफिट बचेगा फिर आपके। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिला समझा आपको, इनकम माइनस वेयर डू यू ट्रांसफर दिस ग्रॉस प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में और खर्चे हैं, व्हाट आर दोज एक्सपेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसको माइनस करो तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है, ओनर, वो आप किस में ऐड कर दोगे, कैपिटल। अब मुझे एक बात बताओ, बिजनेस के टोटल एसेट्स कितने हैं एक साल के बाद? मतलब बिजनेस आप बंद करोगे, मेरे को नहीं करने का, एक साल हो गया बिजनेस बंद करने का, मैं ये बेच देगा और ये पैसा ले लेगा तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा अभी, 157 मिलेगा। लोन चुका देगा मैं, कितना लोन है, 40,000 चुका दिया, तो मेरे लिए कितना बचा, दैट इज द वैल्यू ऑफ माय बिजनेस आफ्टर 1 ईयर, दैट इज माय इक्विटी, दैट इज माय नेट वर्थ, ओनर का इन्वेस्टेड पैसा। बात समझ में आई? एनी डाउट्स? पक्का? टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट विद द डेप्थ, इसी के ऊपर बिल्टअप करना है थियरी है। कुछ भी डाउट्स डिफिकल्टीज हो ऑनलाइन ऑफलाइन, प्लीज वेट, आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज कल सेम टाइम ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन 10 o'clock, टाटा बाय बाय, सी यू।